Hello students. First of all, I welcome you here once again in my YouTube channel English Paradise. I am Abhijit Paul, your English teacher. Students, today I am going to describe a fantastic chapter of self-encouragement, bravery and discipline of one's life composed by Liam O'Flaherty. The name of the text is His First Flight, taken from your First Flight book. So in this video, I will provide a summary and review of The First Flight by Liam O'Flaherty, a magnificent story on the need for courage and self-confidence of one's life. This story is all about a young seagull and his fear of flying. He was full of negative perspectives, pessimism we can say. It is well described here how the entire family members of the young seagull encouraged him to fly, but all went in vain. They became unsuccessful, and for the same he was harshly punished by his parents too. He was left all alone on the ledge, starving for 24 hours. He cried with hunger, but there was no one to take care of him. After all, his mother took a final decision to put before him bait. It worked. He dived for a piece of fish. Mother was high up in the sky and he was in the open air, falling down and down. But finally it shows its bravery, and he opened his wings and found himself flying. In this way, the young seagull took its first flight. We can say parental encouragement and discipline play a very important role in shaping the destiny of the young children. Now students, I will explain the whole lesson. Okay, so put your intense concentration here and try to understand the chapter well. So the first paragraph, it is written, the young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. First of all, we have to understand the word meaning, that is very important to comprehend a chapter. Seagull. What is a seagull? A seagull actually is a bird that lives near the sea. It has short legs, long wings, and white and grey feathers. Next word is ledge. What is ledge? Ledge actually a narrow horizontal shelf projecting from a wall. You can say a cliff, border or any shelf. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंक. ब्रिंक क्या होता है? जो एक्सट्रीम एज होते हैं कोई भी लैंड का, बिफोर स्टीप स्लोप, या बोल सकते हैं कोई बॉडी और वाटर. जैसे कोई भी चीज का हम बोलते हैं ना, हम लोग कगार पे आ गए, लास्ट एंड में आ गए, तो उसी को हम लोग ब्रिंक बोलते हैं, कगार, लास्ट एंड या तो एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड. नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सपेंस. एक्सपेंस का आप जानते हैं कि एक बहुत वाइड कंटिन्यूअस एरिया होता है कोई भी चीज का, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस. So student, this story is about a young seagull who is at that stage of life where he has to learn to fly. But he thought that flying is a difficult task. So unlike his younger brothers and sisters, he is too afraid to fly. When all of them went for flying for the first time near the edge of the sea, all of them except him succeeded in flying. But somehow I don't know why he could not trust his wings. He became very terrified after seeing the vast stretch of sea, and he got convinced that he could never fly. So what happened exactly? So as a result, he was ashamed of himself and he became disheartened, and thus he went inside the ledge where usually he slept. So ये स्टोरी एक छोटा सा एक यंग सीगल का है जो अपने लाइफ में एक ऐसे स्टेज से वो गुजर रहा था जहाँ पे उसे ये सीखना था कि किस तरह से दूसरे बर्ड्स के तरह मुझे भी फ्लाइट करना है, मुझे भी उड़ना है. उसके जितने भी यंग ब्रदर्स और सिस्टर्स है ना, जो
थोड़ी सी भी, दे हैड नो फियर ऑफ फ्लाइंग, और दैट इज द रीजन कि वे लोग बहुत जल्दी फ्लाइंग भी सीख गए। लेकिन कहीं ना कहीं पर इस जो छोटा यंग सीगल है, इसके मन में एक टेरर था, ही वॉज वेरी टेरराइज्ड, और इस डर के कारण ये अपने करेज को मास्टर नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण इसको बहुत परेशानी हो रही थी उड़ने में। इंसान के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट, सेल्फ ओबीडियंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको लगता है कि यू विल फेल, और यहां पर भी वही हुआ। उस यंग सीगल को लगता था कि जैसे उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और जैसे वो वास्ट स्ट्रेच ऑफ सी को देखता था, उसे हमेशा यह फील होता था कि ही वुड नेवर फ्लाई, वो कभी नहीं उड़ेगा। और इसी रिजल्ट के कारण वो बहुत शर्म से जूझ भी रहा था। किसी भी अपने रिलेटिव्स या जो भी अपने कम्युनिटी के दूसरे बर्ड्स है, उसको वो फेस भी नहीं कर पा रहा था। वो बहुत निराश हो गया था, डिसर्टेंट हो गया था। एंड दैट इज द रीजन वो ज्यादातर समय क्या करता था, जब भी वो अशेम्ड होता था, जब भी वो निराश होता था, सो बीइंग डिसअपॉइंटेड, वो क्या करता था, वो सोने के लिए लेज में चला जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. So students, here you can see some words. जैसा पहला word है flapped. फ्लैप का मतलब होता है कि कोई भी बर्ड का जो एक मूवमेंट होता है, उसके विंग्स जो अप एंड डाउन होते हैं, जब वो फ्लाइंग के लिए प्रिपेयर्ड होता है, तो उसी मूवमेंट को हम लोग फ्लैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा मास्टर। मास्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लंज। प्लंज का मतलब गोता खाना या तो जंप करना। श्रीली बोल सकते हैं हम लोग हाई पिच साउंड या पायर्सिंग वॉइस या कोई साउंड। और अपब्रेड का मतलब होता है डांटना या फटकार मारना, स्कोल्ड करना। तो इस पैराग्राफ में क्या है देखो कि जो भी उसके यंगर सिबलिंग्स है, वो somehow managed to take their first flight despite their wings being shorter than his, but he could not summon his courage, he could not master his courage, though he tried so desperately. He was scolded by his parents for not trying again, but he was so afraid that he could not even move. उसको हमेशा ऐसा लगता था कि वो मतलब लाइफ में इतना ज्यादा नेगेटिव था वो, और हम लोग इस सेंस को हम लोग पेसिमिज्म बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ही वॉज फुल ऑफ पेसिमिज्म। उसके पास ब्रेवरी नहीं था, ये कहीं ना कहीं पर वो बहुत टेरराइज्ड रहता था। ही बिकेम वेरी फिरोशियस, जिसके कारण वो हमेशा बहुत ज़्यादा फियरफुल रहता था, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड रहता था। और कहीं ना कहीं पर ये उसके है ना लाइफ के जो फ्यूचर है ना, उस फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं पर ये बहुत ट्रबलसम सिचुएशन था उसके लिए। उसके जो भी यंग सिबलिंग्स है, वो कहीं ना कहीं पर बहुत जल्दी, उसके विंग्स शॉर्टर थे। यंग सीगल का विंग्स उससे फार ग्रेटर भी था, लेकिन फिर भी देखो उसके छोटे सिबलिंग्स अभी क्या कर रहे थे, वो लोग उड़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पर वो अपने जो साहस है उसको वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, और वो नहीं उड़ पा रहा था। उसके पेरेंट्स उसे हमेशा फटकार मारते थे, और हमेशा ये भी डर दिखाते थे कि आपको खाना नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन उससे भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब ऑल देयर अटेम्प्ट्स वेंट इन वेन, है ना। मतलब वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसको हमेशा ये फील होता था कि वो थोड़ा सा उससे मूव भी नहीं कर पाता है, या वो मूव भी नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि ही विल डाइव इनटू द सी, या तो ही विल फॉल इनटू द सी एंड अल्टीमेटली ही विल सॉ डेथ, है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर वो उसे क्या होगा, उसको डेथ मिलेगा उसके लाइफ को, दैट इज द एंड ऑफ हिज लाइफ, ऐसा उसको फील होता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, दैट वाज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen this, his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice.
क्या सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, पहले उसको देख लो। एक हेडिंग वर्ड है। हेडिंग का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? हेडिंग का मतलब होता है एक सॉफ्ट फिंड वाले जो फिश होते हैं उसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं। डिवोर का मतलब कोई भी चीज को बहुत जल्दी खा लेना, या बोल सकते हैं बहुत क्विकली, बहुत फास्ट खाने को हम लोग डिवोर बोलते हैं। निगलने को भी हम लोग डिवोर बोलते हैं। कैकल का मतलब होता है जब आप बहुत लाउड या हार्श वे में आप लव करते हैं, उसको हम लोग कैकल बोलते हैं। और कावर्डिस तो आप जानते हैं, जब इंसान डरपोक बन जाता है, उसमें लैक ऑफ ब्रेवरी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कावर्डिस बोलते हैं। तो सिचुएशन क्या था कि he had been alone for a day after he tried because his parents were busy focusing on his siblings। कहने का मतलब है कि लाइफ में जब आपको कोई कुछ सिखाने का कोशिश करे, इवन आपके जो पेरेंट्स भी है, लेकिन उसका आपके ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, सो अल्टीमेटली वे लोग आपके पीछे समय स्पेंड करना छोड़ देंगे, बिकॉज दे कंसिडर इट टू बी वेस्टफुल। और यहाँ पर भी वही हुआ। उसके जो छोटे छोटे भाई बहन थे, उन लोगों के पीछे उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इंस्टेड ऑफ हिम, क्योंकि उसमें वही परेशानी थी। उसको हमेशा फील होता था कि आई कुड नॉट मास्टर माई करेज एंड आई वुड नॉट फ्लाई इन द स्काई एवर, और जिंदगी में शायद हम कभी भी उड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या सेल्फ ओबीडियंस, या सेल्फ रिलायंस है ना, इस चीज का उसके मन में, इस करेज का उसके मन में बहुत ज्यादा एक अभाव है, हम लोग बोल सकते हैं। फिर क्या बोला गया कि देखो उसके जो पेरेंट्स है उसके सिबलिंग्स को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे ताकि वे लोग मास्टर बन पाए फ्लाइंग में, किस तरह से डाइव कर किया जाए फिश पकड़ने के लिए। उसके जो ओल्डर सिबलिंग है वो अपने फिश पकड़ना शुरू भी कर दिया, और उसको प्राउडली वो ऊपर में अपने पेरेंट्स के साथ जाके रॉक के ऊपर उस हेरिंग को, मतलब फिश को रख के वो लोग सेलिब्रेट करते थे, उसको खाते थे। और उसी सुबह उसके पेरेंट्स उसको हमेशा टॉन्ट करते थे क्योंकि वो बहुत डरपोक था, वो बहुत कावर्ड था। लेकिन देखो इसके बावजूद भी, इंस्टेड ऑफ दैट, या बोल सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ दैट, ही हैड नो इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं पर उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट देखो क्या है पैराग्राफ में। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज स्लेज दैट फेस्ड द साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back, only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped its side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखो। पहला है असेंडिंग द स्काई। ये क्या होता है? असेंडिंग द स्काई मतलब आसमान की तरफ या हाइट में उड़ने को हम लोग असेंडिंग द स्काई बोलते हैं। आप बोल सकते हैं द एक्ट ऑफ राइजिंग अप थ्रू द एयर। नेक्स्ट वर्ड है प्रीनिंग। देखो प्रीनिंग का मतलब होता है जब आप, प्रीनिंग का मतलब ही होता है जब आप फेदर्स को, अपने पंख को क्लीन करते हैं अपने बीक से, अपने होठ से, उसी को हम लोग प्रीनिंग बोलते हैं। एक वर्ड है हम्प। हम्प का मतलब तो आप जानते हैं, वो जो कुबरा या कुबर बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है, मतलब एक राउंडेड रेस्ट मास ऑफ अर्थ और लैंड होता है, उसको हम्प बोलते हैं। कि कहीं पर जैसे पत्थर या ढेला वगैरह रखा हुआ है उसको भी हम्प बोल सकते हैं। आप जो कैमल के पीठ में जो देखते हैं उसका जो बैक होता है वो बहुत रेस्ट पोजीशन में होता है, बहुत हाइट में होता है ना। बुल वगैरह देख लो, ऑक्स वगैरह देख लो, उसका जो बैक है वो हमेशा थोड़ा हाई और रेस्ट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हम्प बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका स्क्रैप्ड। इसका मतलब होता है खत्म कर देना, डिस्कार्ड बोल सकते हैं। सो व्हाट वाज द सिचुएशन? देखो द सन जो है वो अभी पूरी तरह से जो है वो राइजन हो गया, और कहीं ना कहीं पर ही वॉज फीलिंग द हीट मोर देन एवर। रीजन क्या था कि ही वॉज एम्प्टी स्टोमक बोल सकते हो, वो खाली पेट था पिछले रात से ही। सो ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज लेज, वो लेज के बाहर निकलता है और वो प्रिटेंड करता है सोने का एक पैड के ऊपर में, ताकि वो अपने परिवार का, अपने फैमिली का अटेंशन को गेन कर सके। लेकिन वहां पे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, नो वन टुक एनी नोटिस ऑफ हिम, कोई भी उसे देखता तक नहीं है। उसके सिबलिंग्स बिजी रहते हैं सोने में, उसके जो फादर है वो अपने फेदर्स को अपने होठों से क्लीन कर रहे हुए रहते हैं,
और उसकी माँ जो है वो दूसरे एक प्लेट्यू के ऊपर में खड़ी रहती है और वो क्या कर रही है, वो मछली खा रही होती है। एंड वाइल आप ऐसे बोल सकते हैं कि शी नोटिस्ड हिम। सो उसके बाद देखो क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि द यंग सीगल गॉट मैड ऑन सीइंग द फिश। रीजन क्या था बेटा कि ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही लव्ड टू टीयर अवे फिश एंड स्क्रैप हिज बीक नाउ एंड देन। और उसे हमेशा से ही मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद था। उसे टीयर अवे करके, उसे अच्छे से फाड़ कर, उसे अच्छे से क्लीन करके वो खाना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन आज एकदम कंडीशन एडवर्स है, मतलब ही हैड नो फिश, ना तो उसके पास मछली है। एंड आप बोल सकते हैं कि नाइदर हिज फैमिली मेंबर्स वेर इंटरेस्टेड इन नोटिसिंग हिम एंड दे वर नॉट इन टर्म ऑफ सर्विंग हिम फूड एज वेल। और वो लोग उसको क्या कि भूखा ही रख रहे हैं, मतलब एक तरह का ये हार्श पनिशमेंट है कि जब तक तुम कुछ सीखोगे नहीं, अनटिल एंड अनलेस यू लर्न टू फ्लाई, तब तक आप लोगों को कोई भी हेल्प या सेंस ऑफ कोऑपरेशन हमारी तरफ से नहीं मिलेगा। तो इस तरह का एक हार्श ट्रीटमेंट या पनिशमेंट उसे दिया जा रहा था। नेक्स्ट देखो, गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. Ga kola, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, देखो सबसे पहला वर्ड है डेराइसिवली या डेरिसिवली बोल सकते हो। जब आप उसको एक मैनर होता है एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल, मतलब इसको आप हिंदी में उपहास पूर्वक बोल सकते हैं। किसी को उपहास करते हैं, किसी के ऊपर खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। प्लेंटिवली मतलब एक सैड एक्सप्रेशन है। अटर्ड मतलब एक साउंड क्रिएट करना अपने वॉइस से हाई पिच नोट में। और हॉल्टेड का मतलब होता है स्टॉप्ड। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे ये यही मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि उसे इतना ज्यादा भूख लग गया था कि जब उसके माँ को या माँ के पास एक जो हेडिंग फिश था, उस फिश को देखा, सो ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, है ना। तो आप बोलेंगे कि ही क्राइड इन हंगर टू हिज मॉम व्हाइल हिज मदर स्क्रीम्ड बैक angrily, but he kept crying, which soon turned into a joyful scream at the sight of his mother flying towards him with a piece of fish. तो उसको ऐसा लगा कि शायद मेरी माँ मुझे भूखा नहीं देख सकती है, और माँ का अफेक्शन ऐसा ही होता है, माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती है, बात तो सही है ना। लेकिन उसके माँ ने कहीं ना कहीं पर मतलब फ्रॉम हर हार्ट वो एकदम डिटरमाइंड था या थी कि इस हमारे बेटे को या हमारे बच्चे को अगर मुझे सिखाना है तो कहीं ना कहीं पर मुझे थोड़ा सा हार्श या मतलब एफेक्शन से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। और दैट इज द रीजन कि शी हिट अपॉन ए प्लान, और कहीं ना कहीं पर उसको एक प्लान सूझा। वो उसके पास तो आई, लेकिन कहीं ना कहीं पर अपने बीक के ऊपर उस फिश को, हेडिंग फिश को होल्ड करके रखी हुई थी, और उसके पास आके वो मोशनलेस हो गई, उसके एकदम करीब नहीं आई। ताकि आप खुद से क्या करो, अपने तरफ से मतलब कोशिश करो, है ना। तो हमेशा जो अटेम्प्ट्स होता है या तो एंडेवर्स होता है, वो तुम्हारे तरफ से होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बोला कि एक जॉयफुल स्क्रीम हो गया उसके माँ को, उसके तरफ जैसे ही वो उड़कर देखा, बच्चा है तो कहीं ना कहीं पर उसके माँ को जैसे अपने तरफ आते हुए देखा तो वो बहुत खुश हो गया। उसको लगा कि नाउ माय मॉम इज गोइंग टू गिव मी सम फिश और फूड, है ना, ताकि हम क्या कर सकते हैं, आई कैन सैटिस्फाई माय हंगर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो बाद में उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी माँ वहां पे एकदम स्टॉप हो गई है, ना तो कोई वहां पे एक्साइटमेंट है ना, और ना कुछ है, मतलब माँ एकदम पूरा मोशनलेस हो गई है। तो अपने हंगर को कंट्रोल वो नहीं कर पा रहा था, तो और इसीलिए अल्टीमेट क्या किया कि एक पल के लिए वो कुछ भी जो कंसिक्वेंसेस क्या हो गए फ्यूचर के, उसको वो रियलाइज तक नहीं किया, और वहां पे वो डाइव मार दिया उस फिश के लिए, है ना। तो वही बात बोला गया कि उसी सिचुएशन के लिए, मतलब उस उड़ने के लिए या डाइव मारने के लिए या कोई भी इस तरह का एक एडवेंचरस वर्क करने के लिए वो हमेशा अपने आप को इन्फीरियर फील करता था। लेकिन आज देखो भूख ने शायद सब कुछ उसे सिखा दिया। तो उसी मोमेंट में विदाउट रियलाइजिंग एनीथिंग ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई वंस, बट नाउ ही डाइव्ड एट द फिश। और आज और अभी क्या हुआ, अभी उस फिश के ऊपर में वो डाइव कर दिया।
है ना। सो क्या है उसके बाद है कि विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, देन ए monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against the breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga ga ga, ga ga ga, go cola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. So कुछ वर्ड्स है, एक तो है monstrous. मॉन्स्ट्रस का स्टूडेंट क्या मतलब होता है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा हॉरिबल हो तो उसे हम लोग मॉन्स्ट्रस बोलते हैं। सीस्ट का मतलब होता है होल्ड बोल सकते हो या ग्रैब बोल सकते हो, पकड़ना, है ना, या कंट्रोल करना या तो घेर लेना, कुछ भी हो सकता है। हेडलॉन्ग का मतलब होता है विद द हेड फॉरमोस्ट, है ना, कि सामने की तरफ आपका अगर हेड रहे उसे हम लोग हेडलॉन्ग बोलते हैं। शोरिंग का मतलब तो मैंने पहले भी बताया कि फ्लाइंग बोल सकते हैं या तो राइजिंग हाई इन द एयर। और सूप का मतलब एक बर्ड के लिए उसके रैपिड मूवमेंट के लिए, जब हम लोग हवा को चीरते हुए कोई भी बर्ड अगर नीचे वो जा रहा है, डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है, वो डिसेंड कर रहा है, तो उसे हम लोग स्विफ्ट बोलते हैं। और कर्वेटिंग का मतलब होता है कि लगातार एक सीरीज ऑफ जंप्स ऑन द हाइंड लेग्स, अपने पैर के बल पे वो क्या करते हैं, उसको जंप्स लगाते हैं, उसी को हम लोग कर्वेटिंग बोलते हैं। तो सिचुएशन क्या था, आप बोल सकते हैं कि ही गॉट सो एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हो गया, दैट ही फेल as soon as he tried. For a moment he was in shock and stood still out of terror. All this lasted only for a moment and soon his feathers opened as he fell. Situation ऐसा था कि देखो कि जब तक until and unless you try and take your first attempt or step towards the future, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि where are you और what is your right position। तो आज तक उसने कभी कोशिश ही नहीं किया, वो हमेशा अपने आप को इंफीरियर समझता था, कभी भी स्टेप नहीं लिया उड़ने के लिए, एंड दैट इज व्हाई ही कुड नॉट बी सक्सेसफुल। लेकिन आज सिचुएशन एकदम ट्रांसफॉर्म्ड है। आज वो जैसे अपने माँ के मुंह से उस फिश को छीनने के लिए वो जैसे जंप किया तो एक पल के लिए लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, बट मतलब ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं एकदम डीपर कॉन्साइंस में उसे जैसे फील हो रहा था कि नहीं, मतलब अगर हम कोशिश करें अभी तो शायद हम उड़ सकते हैं। और इसीलिए उसके ऑटोमेटिक उसके जो फेदर्स है वो फ्लैप्ड होना शुरू हो गया, वो खुलना शुरू हो गया, और वो ग्रेजुअली कभी अपवर्ड्स जाता था और ग्रेजुअली कभी वो डाउनवर्ड्स जाता था। तो इस तरह के मूवमेंट को देख के उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो गए, उसके सिबलिंग्स बहुत खुश हो गए। अब देखो, इससे पहले जो उसके पेरेंट्स उसको कोई नोटिस नहीं करते थे, अब वही पेरेंट्स एट वंस वहां पे पहुंच गए, उसके सिबलिंग्स पहुंच गए। दे स्टार्टेड टू चीयर हिम अप। वो लोग समय हमेशा चीयर कर रहे हैं कि भाई तुमसे हो पाएगा, तुम कोशिश अगर करो तो तुम उड़ सकते हो, है ना, स्टे मोटिवेटेड इन योर लाइफ। इस तरह का उसके माँ, उसके पापा, जो भी उसके फादर एंड मदर थे, वो लोग भी ऑपोजिट साइड से रिएक्शन दे रहे थे, रिस्पॉन्स दे रहे थे। वो लोग भी उसे चीयर कर रहे थे, उसे मोटिवेट और इंस्पायर कर रहे थे उड़ने के लिए, टू फ्लाई, है ना। तो यही बात बोला गया कि उसके जो फेदर्स है ऑटोमेटिक वो फिल्ड हो गया, वो ओपनड हो गया। ही कुड फील द विंड। अब अपने ब्रेस्ट के तरफ, अपने सीने के तरफ उसके फेदर्स में वो फील कर पा रहा था हवा को, उसके स्टोमक को फील कर पा रहा था, उसके विंग्स को वो फील कर पा रहा था। ही कुड फील हिमसेल्फ, वो अपने आप को फील कर पा रहा था कि वो हवा को चीरता हुआ ऊपर की तरह उड़ रहा है। ही वॉज नॉट अफ्रेड एनी मोर। अभी जो अचानक से कहीं ना कहीं से उसके जो मन में जितने भी डर थे वो भी कहीं ना कहीं से गायब हो गए। और बोला गया कि he was not afraid anymore, he was just a bit nervous। थोड़ा सा वो नर्वस था, लेकिन तभी उसके माँ उसको हमेशा की तरह की माँ है, एफेक्शनेट है, तो साथ भी देती है उसे। अब पूरा होल फैमिली स्क्रीम करते हैं, चीयर करते हैं एक्साइटमेंट में, और इस तरह से उसके जो विक्ट्री है, उसने जो एक डर के ऊपर जो वो जीत पाया, उसके लिए अभी सब कोई बहुत ज्यादा खुश हो गए। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar
and curve. Shrieking shrilly, he was near the sea now, flying straight over it, facing straight but over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with the ridges moving over it, and he turned the beak sideways and cawed amusedly. फिर से कुछ वर्ड्स है, थोड़ा सा उसको नोटिस करो. श्रिक का मतलब होता है हाई पिच साउंड क्रिएट करना. श्रिल मतलब लाउडली और फोर्सफुली. रिजेस क्या होता है? जो भी माउंटेन रेंज होते हैं या तो आपका नैरो हिल टॉप होता है तो उसके ऊपर के हिस्से को हम लोग रिज बोलते हैं. कॉट का मतलब होता है आवाज करना, स्क्रीम करना, चीखना, चिल्लाना. तो यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया कि once he overcame his fear, he forgot that he was once afraid of it. जैसे अपने फियर के ऊपर में वो जीत पा लिया, विक्ट्री पा लिया, तो एक पल के लिए उसके मन में जो डर था वो कहीं ना कहीं पर वो दूर हो गया. उस अब क्या था कि he flied straight over the sea and could see the greenery over the mountains beneath him. He screamed out of joy as he enjoyed the victory. देखो, जब इंसान अपने जो भी डर है उसके ऊपर जब जीत पा लेती है तो कहीं ना कहीं पर ये इंसान का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है. तो यहाँ पे जो ये यंग सीगल है उसके लिए भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि आज इतने दिनों के बाद मैं कहीं ना कहीं पर आई एम जस्ट एबल टू मास्टर माई करेज एंड आई हैव टर्न्ड दिस इम्पॉसिबल टू बी आई एम पॉसिबल, है ना. तो कहीं ना कहीं पर ये जो परेशानी मेरे साथ हो रही थी, है ना, तो हम कोई भी चीज में अपना फोकस नहीं कर पा रहे थे, मेरे पास सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, है ना, सेल्फ रिलायंस, ये सब नहीं था. तो कहीं ना कहीं पर आज हमारे अपने विक्ट्री के लिए हम कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा खुश हो गए इस कंडीशन से. Next paragraph. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and round him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड है, देखो, बेकॉनिंग. बेकॉनिंग का मतलब होता है कोई भी इशारा बोल सकते हो, जेस्चर बोल सकते हो. तो इस पैराग्राफ में जो नैरेटर है वो क्या कहते हैं कि जब वो लैंड किया, उसका पूरा परिवार उसके साथ साथ लैंड किया, और कहीं ना कहीं पर वो लोग क्या दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं पर वो लोग इशारा कर रहे थे या दर्शा रहे थे उसे कि हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं. वो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे एक्साइटमेंट में. नेक्स्ट देखो क्या हुआ. ही देन went into the sea where at first he got scared and thus panicked. उसके बाद वो जैसे ही vast stretch of sea के ऊपर से वो स्कीम करने का कोशिश करता है, यहाँ भी वो थोड़ा डर जाता है, पैनिक्ड हो जाता है, वो वहाँ से भागने का कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत टायर्ड हो जाता है, वीक भी रहता है क्योंकि भूखा तो अभी भी है. Thus when he calmed down, he started floating in the sea he was once afraid of. His family was celebrating in excitement and offered him food as praise. Finally he had overcome his fear and had made his first flight. तो सिचुएशन स्टूडेंट्स कैसा था कि कमजोर तो हो गया था, लेकिन उस वक्त अब जब वो कमजोर हो गया तो कहीं ना कहीं पर वो स्कीम करने का जब कोशिश कर रहा था सी के सरफेस एरिया के ऊपर में, तब वो कमजोर होकर उसके ऊपर ही वो तैरना शुरू कर दिया. उसके एग्जॉशन को देख के उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स या उसके जो भी सिबलिंग्स है, जो भी भाई बहन है, वो लोग उसके लिए कुछ फूड लेकर आए और उसे खाने के बाद कहीं ना कहीं पर वो बहुत अच्छा महसूस किया होगा. तो सबसे ज्यादा खुश थे उसके पेरेंट्स. आज जो ये सिचुएशन हुआ उसके लिए सबसे ज्यादा उसके पेरेंट्स खुश थे. तो कहीं ना कहीं पर इतने दिन का जो एक प्रॉब्लम था आज उसे वो ओवरकम किया, उस डर के ऊपर वो जीत पाया और ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो स्टूडेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि व्हेन ही लैंडेड, हिज फैमिली लैंडेड अलोंग विद हिम एज अ जेस्चर दैट दे वर वेरी प्राउड. दे वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन एक्साइटमेंट इन देयर हाई पिच्ड वॉइसेस. He then went into the sea, where at first he got scared and thus being very panicked. He tried escaping but got tired and weak because of the hunger. आप ऐसे बोल सकते हैं कि thus when he calmed down, he started floating in the sea. He was once afraid of floating on the sea or seeing that in front of him was a bit difficult, right?
But now he has done every impossible thing to be possible. His family was celebrating in excitement and offered him food as praise. Finally, he had overcome his fear and had made his first flight. So, student, this was the text that I have described in front of you. I hope you have comprehended the chapter well. But still, if you have any queries, so put your valuable comments in my comment section. And in the next video I will cover the other aspects of your textual and the rapid readers books. So thank you so much having patience to listen to me carefully, and I urge everyone to subscribe, like and share this video as many as possible. Thank you so much. Bye bye. Take care.